Hey guys, I hope you are doing fine. And yeah, I'm in office and right now it's like 7:45 a.m. So yeah, so today I will be doing the back exercises and won't be doing the leg exercises for this whole week because I want my knee to get recovered completely before I play our next match. So yeah, that is about the workout. And talking about the topic that I will be talking about in this video, so it will be around like being from an EC background, how I manage, my core electronic subject along with the coding and able to make into the software engineering field. So कोई भी आई मीन स्टूडेंट या फिर जो भी देख रहा है, अगर वो CSE और रिलेटेड डिपार्टमेंट से नहीं है, so this video could be helpful to you. So you'll be getting to know about like how to manage your studies of your own department and along with the coding and what all things are necessary basically, from the placement perspective that you need to take care of और बाकी सारी चीज़ें भी. So make sure you watch it complete and yeah, I'll catch you later right now because I'm going to gym. So after having the amazing breakfast with full of energy, चलो टेक्स्ट पे चलते हैं to do some work. And also like इस week मैं एक डिज़ाइन डॉक पे काम कर रहा था and वो almost ready है. Then उसके बाद I will get it reviewed from few of the seniors. So after working for like 2-3 hours and also जिम करने के बाद मेरे को थोड़ा सा थकान फील हो रहा था, so I went to the massaging chair to get it relaxed and एक छोटा सा हाइड्रेशन ब्रेक लेने के बाद we went for the lunch. And after coming from the lunch I have to do some more work and देखते देखते आधा दिन कैसे चला गया पता ही नहीं चला. Okay, alright guys, so after wrapping most of the tasks for today and feeling better actually क्योंकि like I was working on like multiple tasks जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. So I was able to raise the changes from my end and फिर सामने से रिव्यू भी आया था. So there were couple of comments, so उनको रिसॉल्व करने में काफ़ी टाइम चला गया. But now everything is sorted. So yeah, and right now it's around 5:15. तो आज I will be going little late. Yeah. मैं सोच रहा था कि like I would be practicing the piano in office. So जो सॉन्ग मैं like घर पे प्रैक्टिस कर रहा था, so that is almost perfect. And yep, in couple of weeks, maybe 1 or 2, I would be putting out on my like Insta page. So do check that out. बाकी अगर कुछ queries and कुछ doubts है तो इस वाले Instagram page पर message या फिर ping कर देना. So that's about the Insta and music और about the topic of the video. चलो इस पे आते हैं. So it is about like मेरी branch थी EC, but still I'm in Google and working in the coding and software engineering field. So ये मैंने कैसे किया? But उससे पहले मैं बता दूँ like I was in Samsung and उससे पहले I was in Cashtree. So ये दो कंपनीज मैंने स्विच करके like Google is my third company, alright. So and तीनों कंपनीज में I was working as a software engineer only, alright. So शुरू से आते हैं. सो कॉलेज टाइम में जब कंपनीज आती हैं फॉर प्लेसमेंट और फॉर इंटर्नशिप, लाइक उनका क्राइटेरिया होता है कि लाइक दे विल बी सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम पर्टिकुलर ब्रांचेज ओनली. सो मेरे टाइम में आई वॉज लकी लाइक जब सैमसंग आई PPO के लिए, सो उन्होंने लाइक ब्रांच क्राइटेरिया उस टाइम रखा था कि लाइक CSE, EC एंड EEC लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होंगे. सो अगेन आई एम फ्रॉम EC, तो आई वॉज एलिजिबल. बट अगेन कुछ कंपनीज थी कि वो सिर्फ CSE ओनली के लिए ही आ रही थी. देयर वर सम गुड स्टार्टअप एंड कुछ जो मिड साइज स्टार्टअप्स थे वो भी सिर्फ CSE को प्रेफर कर रहे थे. सो देयर वर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिनके लिए मैं एलिजिबल नहीं था, बट स्टिल जो अपॉर्चुनिटीज जिसके लिए मैं एलिजिबल था, आई वॉज एबल टू मेक यूज ऑफ दैट एंड यस ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. सो बहुत डिफिकल्ट होता है ऑब्वियसली, लाइक यू आर स्टडीइंग your own department subjects and also you are studying the coding related subjects also.
सो लाइक ऐसा होता था कि लाइक कपल ऑफ माई फ्रेंड्स वर इन द CSE डिपार्टमेंट, सो दे वर हैविंग वेरी गुड सब्जेक्ट जिनको पढ़ने का मेरा इंटरेस्ट होता था, बट सिंस मुझे अपने ही सब्जेक्ट से टाइम नहीं मिलता था, सो मैं वो सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ूँ. देयर वर लाइक कपल ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आई रियली like to know about, like the blockchain development they had and game theory, but मेरी जो EC के सब्जेक्ट्स थे उन्हें भी पढ़ना होता था because I need to maintain the consistently good CGPA so that I will be eligible for good companies, क्योंकि CGPA criteria is there, right? So you have to maintain a very good CGPA, and I would say like maintain a CGPA above 8. अदरवाइज वो थोड़ा रिस्की हो जाता है कि कुछ कंपनीज लाइक रख दे कि नहीं उन्हें 8.5 वगैरह चाहिए या फिर 8 चाहिए, अगर उसे नीचे फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इवन दो तुम उसमें ज्वाइन करना चाहते हो और तुमने बहुत अच्छी कोडिंग कर रखी है बट CGPA तुम्हें अलाउ नहीं कर रहा है, तो वो कैंपस टाइम में ही तुम्हारा कट जाता है बेसिकली. सो ऐसा मत करना, मेंटेन अ गुड CGPA. एंड यस, सो हाउ आई हैव मैनेज बेसिकली. तो लाइक मेरा सेकेंड एंड थर्ड ईयर तो कोविड में चला गया था, सो आई वॉज एट होम. सो उस टाइम लाइक बहुत ईजी था, क्लासेस ऑनलाइन चलती थी एंड क्लासेस में यू हैव टू गो एंड अटेंड इन द ऑनलाइन मीटिंग, बट अगेन यू हैव अनदर टैब ओपन जहाँ पे तुम कोडिंग वगैरह कर रहे होते हो, जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हो. सो आई हैव डन लाइक आई वॉज मैनेजिंग थिंग्स इन दिस वे, ताकि दोनों चीज़ें पैरेलल में चलती रहें, और जब एग्ज़ाम वगैरह आता था तब उससे एक वीक पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो. सो इस टाइप से मैनेज किया. बट या लाइक इवन इफ़ यू आर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, लाइक अपार्ट फ्रॉम लाइक CSE, EEE और EC, still you can go into the software engineering field, but बहुत like कम कंपनीज होंगी जिसके लिए तुम एलिजिबल होगे, even if they are coming in your college. So the thing is, once you enter in the industry, और मान लो आपकी मैकेनिकल वगैरह थी, सिविल थी, but you are still able to grab the opportunity in software engineering field, तो उसके बाद स्विच करना आई वुड से बहुत ईजी होता है इन कंपैरिजन कि आपके 4 साल ख़त्म हो गए और आप अनप्लेस्ड हो और आपकी ब्रांच भी आपको अलाउ नहीं कर रही है, फिर ऑफ कैंपस तो बहुत मुश्किल है अगर अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई, तो अगर जब तक तुम कैंपस में थे. सो या आई वुड से कि ऑन कैंपस में जब तक हो तब तक अच्छे से हाथ पैर मार लो ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी गलती से भी मिस ना हो तुमसे, राइट? तो ये चीज़ थी. बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम EC और EEE बैकग्राउंड कि तुम्हें कोडिंग रिलेटेड फील्ड में ही जाना है. इट्स जस्ट दैट कि तुमने अच्छे से पढ़ाई की, देन यू कैन गो इन योर करंट ब्रांच फील्ड ऑल्सो, राइट? इवन दो लाइक ये कोर की कंपनीज है तो अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम होंगी, मे बी गवर्नमेंट साइड जा सकते हो. सो लाइक यू हैव टू राइट एग्जाम फॉर दैट, लाइक गेट वगैरह हो गया जिससे तुम PSUs में ज्वाइन कर सकते हो, एंड PSUs आर गुड ओनली आई वुड से. और उसके बाद हो गया कि कुछ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर कंपनीज भी होती हैं, राइट? सो दे आर ऑल्सो गुड. सो लाइक अगर मैं EC की बात करूँ, सो देयर इज टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, NVIDIA और NXP सेमीकंडक्टर्स, ये सारी मतलब बहुत अच्छी बिग टेक जिसे कहेंगे फैंग लेवल की कंपनीज हैं, बट फॉर EC डोमेन. सो जो EC ब्रांच है वो ऐसी ब्रांच नहीं है कि नहीं अब तो कोडिंग में ही जाना है. इट्स जस्ट दैट कि तुम्हारा इंटरेस्ट अगर इस फील्ड में डेवलप हो गया तुम ज्वाइन कर सकते हो और कुछ खराबी नहीं है, ओके? बाकी रही सिविल, मैकेनिकल और बाकी ब्रांचेस, देन यस इंडिया में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कम है अगर इन ब्रांचेस से अगर तुम ग्रेजुएट होते हो तो यू हैव टू मोस्टली गो टूवर्ड्स राइटिंग एग्ज़ाम फॉर द हायर स्टडीज़, या फिर UPSC हो गया, अगेन गेट एग्ज़ाम हो गया तुम्हें लिखना पड़ेगा. और या दे आर आई वुड से कंपैरेटिवली लेस कंपनीज इन दीज रिलेटेड टू दीज ब्रांचेस. सो इट्स मोस्टली डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट कि किस डायरेक्शन में तुम परस्यू करना चाहते हो. बट वो कैसे पता चलेगा कि लाइक तुम्हारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है? बाय एक्सप्लोरिंग व्हाट्स कमिंग ऑन योर वे. तो कोई भी ऐसे मतलब अपॉर्चुनिटी मिले, इवन दो वो अनरिलेटेड है तुम्हारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो
तो भी लाइक उसे ग्रैब करना एंड एबल टू यूटिलाइज दैट एंड लर्न समथिंग फ्रॉम इट, ताकि एक्सपीरियंस मिले तुम्हें बेसिकली, एंड उससे फिर तुम्हें जज करने में ईजी उससे फिर तुम्हें जज करने में यू नो अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे कि हाँ मेरे को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि नहीं. सो दैट वाज द थिंग दैट आई वांटेड टू से. एंड यप, अगर कुछ और कहना है या फिर कुछ क्वेश्चन मैंने अगर स्किप कर दिया है तो कमेंट्स में तुम पूछ लेना. आई वुड बी यू नो आंसरिंग दैट फ्रॉम देयर. एंड यप, दैट इज फॉर दिस वीडियो. सो आई होप कि यू नो थिंग्स आर क्लियर एंड या let me know if you have some more doubt. Baki, let me go and practice some piano, then I will leave for home.